apparent depth. Here you see this when object is placed at the bottom and due to refraction the image is formed at the eye. Means it is the real depth, it is the apparent depth. The real depth, it is apparent depth. Here it passes, it is away from the normal and a virtual image formed at eye. When light passes normal 90 degree पर अगर ये जाती है, this without deviation this pass straight, but when it is incident at a particular angle, since it is passes from denser to rare, it bends away from the normal. So this is I, this is R. So this is also I, alternate, and this is corresponding angle, this is R. Here in a triangle AOB, sin I is equal to AB upon OB, and in triangle IAB, sin R is equal to AB upon IB. Sin I upon sin R is equal to AB upon OB upon AB upon IB. AB cancelled out, this is equal to IB upon OB. Since this light passes from water to air, water से air में जा रहा है, तो refractive index of air with respect to water, it is equal to sin I upon sin R. इसको लिख सकते हैं W mu A is equal to 1 upon A mu W, refractive index of water with respect to air, so sin I upon sin R. This implies that the refractive index of water A mu W is equal to sin R upon sin I. Therefore, since sin I upon sin R is IB upon OB, therefore sin R upon sin I हो जाएगा. Therefore, A mu W, a refractive index of water with respect to air, it is equal to sin R upon sin I, sin R upon sin I, it is equal to OB upon IB. Since the side of the pupil, आँख की जो प्यूपिल है उसकी साइज बहुत छोटी होती है. रे BC will pass through the pupil only when B is close to A. यहाँ लिखते हैं कि note down. Since the side of the pupil, side of pupil is small, so ray BC, ray BC will pass through the eye only when ray BC will pass through eye only when through eye. Sir, through eye through eye आँख से तभी पास होगी. आई ओनली व्हेन बी इज क्लोज टू ए. बी क्लोज टू ए. जब बी ए के बहुत क्लोज हो, इन दैट केस, in this case you see OB is approximately equal to OA. Approximately equal to OA. जब B A के क्लोज होगा तो OB OA एक तरह से उन साइड पर जाएंगे, एंड IB is equal to IA. OB is equal to OA and IB is equal to IA. Therefore, OB के बेस पे हम इसके बाद अच्छा
Therefore, refractive index A mu W, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. So A mu W is equal to mu. Mu means refractive index of water. It is absolute refractive index. It is equal to OB. OB means OA. OA upon OA हो गया इधर IA. It is OA क्या है? रियल डेप्थ. Yes. और IA है अपरेंट डेप्थ. Thus refractive index mu is equal to real depth upon apparent depth. Real depth upon apparent depth. ये हमें मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का रिलेशन. रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. नॉर्मल शिफ्ट इसके बारे में देखते हैं, कितना शिफ्ट कर जाता है ओ आई. नॉर्मल शिफ्ट वैल्यू नॉर्मल शिफ्ट distance through which the image of the object appear to the raised the distance. क्या लिखे हो? Distance through which the image of the object appears to be raised from the real depth. From the real depth is known as the normal shift. Is known as the normal shift. अपनी रियल डेप्थ से जितना ऊपर इमेज इसकी दिखती है इसे हम नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं. हियर नॉर्मल शिफ्ट इज ओ आई. नॉर्मल शिफ्ट is OI. So OI is equal to हमारे पास होगा OA minus IA. OA minus IA. OA take out common, तो वैल्यू हो जाएगी 1 minus IA upon OA. IA upon OA. IA upon OA. It is 1 upon from this. Here you see OI को अगर हम D ले लें, OA को इसकी हाइट को हम T लेते हैं, T को थिकनेस लेते हैं, दिस थिकनेस T, और दिस इज 1 minus 1 upon A mu W. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. वाटर मीन्स यहाँ वाटर होगा, वहाँ कोई मीडियम, अगर ग्लास है नीचे मोटा सा ग्लास, उसकी थिकनेस अगर टी है, नीचे अगर एक स्क्रैच मार दिया जाए तो स्क्रैच वहाँ नहीं दिखता, थोड़ा ऊपर. तो ये चीज़ें हमें देखते हैं. तो ये लिखते हैं नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी 1 minus 1 upon u. इट इज द नॉर्मल शिफ्ट. ये एप्लीकेशन है, देख लेना. सनराइज सनसेट. सन 2 मिनट पहले अपीयर हो जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है. सब टेंथ में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे. 4 मिनट लेंथ बढ़ जाती है, डे की लेंथ
बढ़ जाती, ड्यूरेशन ऑफ द डे टाइम इंक्रीजेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये सब एप्लीकेशन हैं, देख लेना, बहुत ही एप्लीकेशन है इसकी कि ये जो है ड्यू टू रिफ्रैक्शन द स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग एंड द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स इज नॉट सीन। अपने रियल पोजीशन में नहीं दिखता, क्योंकि रे जो आती है वो रे रिफ्रैक्टेड मीडियम से होकर के आती है, तो रहता कहीं और है, दिखता कहीं और। तो ये सब इसके एप्लीकेशन से रियल अपरेंस समझ आ रहा है। नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास मिल रहा है dt1 - 1/u, ये हमें मिलता है length of the day increases 4 minutes, the length of the day increases, या the day length of the day increases by 4 minutes due to refraction। कभी कभी आता है कि explain how the length of the day increases by 4 minutes, तो एक्चुअली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में होता यही है कि हमारी अगर अर्थ ऐसे ही है, इसकी किनारे किनारे पूरा जब रे जाएगी, तो सन अगर हमारी ये हॉरिजन अगर हमारे पास, तो यहाँ से अगर हॉरिजन है, यहाँ से अगर देख रहे हैं, सन जिस समय यहाँ होता है, तो रे यहाँ से जो जाती है, मान लो यहाँ पहुँची, तो अगर यहाँ पे पहुँच रही है रे, तो इट इज रे जो पहुँचेगी, नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी, मान लो यहाँ से लगातार बेंड होगी, लगातार बेंड होते चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, ध्यान में रखना। तो ये जो रे है, ये जब ऐसे यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर रहेगा, इसको ये लगता है कि रे हमेशा ट्रैवल ऑन स्ट्रेट पाथ, तो इसी जहाँ से स्ट्रेट दिखती है, आंख में ले जा रही है, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ से देखती है, रे को देखता है, तो लगता है सर ये रहता तो यहाँ पे है, लेकिन दिखता है यहाँ पे 2 मिनट पहले दिख जाता है। और अभी नॉर्मल ड्रा करोगे यहाँ से सेंटर से, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, तो लाइट बेंड कर जाएगी। तो हमें लगता है कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है, ऑब्जर्वर, इसे लगता है कि सन यहाँ पर है, लाइट में सीधे आ रही है, तो सन यहाँ पे रहता है और 2 मिनट पहले दिखा। सन अपीयर्स 2 minutes earlier and it also appears 2 minutes after the sunset। 2 मिनट अर्लियर दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है आफ्टर द सनसेट। सन यहाँ चले जाता है, फिर भी यहाँ पे दिखता रहता है। इन दिस वे द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज बाय 4 मिनट। बात समझ आ रही है ना? इसे थोड़ा बहुत पढ़ी भी होगी तुम लोग पहले से 10th में। तो ये हमारे पास ये एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशंस हैं। द स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी इसका एप्लीकेशन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो ये हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करता है? When light passes from the star, it has to pass through the different refracting medium. Due to different refracting medium, when the light passes from the star, then what happens? Frequently it has to change its path continuously. So sometimes light comes to the eye, larger light comes, sometimes the smaller light comes. As a result, कभी लाइट हमेशा चेंज हो रहा है पाथ, तो कभी कम लाइट आती, कभी अधिक लाइट आती यहाँ पर। तो एज ए रिजल्ट द ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ लाइट, स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग। लाइट आ रही है, कभी कम आई आँख में, कभी अधिक आई, तो
उसको कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यहीं पे प्लानिट हमारा सन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सन Very close to it. हाँ क्लोज टू अर्थ एंड सन कैन बी एज्यूम टू बी मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। Yes. कई स्टार्स का बना हुआ मान सकते हैं, और अगर एक पार्ट से लाइट कम आ रही है तो दूसरे पार्ट से लाइट, सन बहुत बड़ा है, स्टार को हम एक सोर्स मान सकते हैं, और सन को मान सकते हैं इट इज मेड ऑफ मेनी स्टार्स। अगर एक पार्ट से लाइट कम आई, दूसरे पार्ट से लाइट अधिक आ गई, तो कंटिन्यूसली हमें एक कंटिन्यूस लाइट हमें आँख में मिलती रहती है। इस नाते इसकी ट्विंकलिंग नहीं दिखती, लेकिन ये एक ही सोर्स है, तो कभी कम कभी अधिक। वैसे ही जैसे एक घर में दो कमाने वाले हों और एक घर में एक कमाने वाला, एक कमाने वाले का अगर नौकरी का खतरे में पड़ जाए तो घर में डिमिनिशिंग मतलब डिम लाइट हो जाएगी। अगर दो हैं तो एक सपोर्ट कर देगा, पता नहीं लगेगा, दोनों बैलेंस में कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इट कैन बी अज्यूम टू बी मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द स्टार्स। इफ सम स्टार्स आर नॉट एबल टू रीच लाइट at any instant, but other part they are able to reach the light to the eye. So as a result, it does not appear twinkling. आँख को कंटिन्यूस लाइट मिलती रहती है। और यहाँ पे स्टार इससे सन से बड़े होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, तो उसको एक पॉइंट सोर्स मान करके हम चलते हैं। इसीलिए ये सब एप्लीकेशंस हैं इसके स्टार्स के, मतलब उसके रिफ्रैक्शन के। तो ये सब चीज़ें हमें हैं, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है हमको देखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि देख लेना जरा। अगर हम एक सोर्स को यहाँ पे रखें, सोर्स यहाँ से लाइट अगर 90 डिग्री जाएगी सीधे निकल जाएगी, अगर किसी एंगल पर गिरे तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आई होगा और ये आ। और अगर लाइट इस पर गिरे, इट इज, तो अगर ऐसे झुके तो एक ऐसी पोजीशन आएगी, इसको थोड़ा सा इधर आ सकता है, इस एंगल को हम आईसी करते हैं, ये आर हो गया, ये 90 डिग्री पे। लाइट को अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाएं तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। वो लाइट सरफेस पर ग्रेज करेगी, इस पर ऐसे सरफेस, फिर पूरा सरफेस ऐसे लाइटेड दिखेगा, चमकीला दिखेगा। इसके बाद भी अगर लाइट को थोड़ा और टिल्ट करें और यहाँ से हम और आगे बढ़ा देते हैं और लाइट को टिल्ट करें और लाइट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें, अब लाइट सरफेस पे न रह करके सरफेस के मीडियम के अंदर ही आ जाएगी, जैसे दिस इज आई। तब ऐसी स्थिति में लाइट अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक क्रिटिकल एंगल इसको कहते हैं, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इट इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर लाइट
डेंसर से रेयर में जाए, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर द क्रिटिकल एंगल, जो आई है इट इज ग्रेटर देन आई सी, तो इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यह रिफ्लेक्शन बाहर नहीं जाता, अंदर ही आ जाता है। जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में चला जाता है। इसे ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसे कहते हैं। मतलब लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियल मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर द क्रिटिकल एंगल, then light is totally internally reflected in the same medium. This is known as the total internal reflection. यही है टोटल, इसका बहुत एप्लीकेशन है। डायमंड में भी होता है, डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और डायमंड के साथ साथ रेनबो जो बनती है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हमारा जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेलीफोन वगैरह, हमारी ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होती है। तो जो टेलीफोन से बात करते हैं, मोबाइल से नहीं, टेलीफोन से, तो टेलीफोन के वायर में बाहर वाला मीडियम रेयर होता है, अंदर वाला जो वायर होता है डेंसर होता है। तो लाइट तार में होकर के ऐसे चली जाती है बाहर वाले मीडियम को में से, तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे दूर तक चली जाती है। टेलीफोन से बात करो, घंटों बात करो, बाहर कितनी भी बिजली तड़क रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल से डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन टेलीफोन से नहीं, क्योंकि ये तार के अंदर से चला जाता है और बाहर एटमॉस्फेयर से एकदम सुरक्षित रहता है। अरे ये कंपनी को इंटरकॉम जो लगा हुआ है, जो इंटरनल फोन, उससे लगातार लोग बात करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में चलती है, तो डिस्टर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर से। सर कभी कभी ऐसे टीवी होता है, टीवी के पास अगर फ़ोन रखा रहता है और फ़ोन आता है ना फ़ोन पे, तो टीवी में आवाज़ क्या मिल जाता है, ऐसा कभी सुने हैं? ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन ज़रूर है कि टीवी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसका इंटरसेप्ट अगर कहीं करेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। लेकिन कहीं कहीं इंटरसेप्ट करते हैं दूसरे को, ऐसा नहीं, वेव ही तो है, हवा में सब आ रहा है। इसलिए कभी कभी टीवी जब ऑन रहता है तो उसमें आवाज़ क्या मिल जाता है, जैसे फ़ोन आता है कभी नहीं, बचा है मेरे हमेशा इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छा, ताकि इसको दूसरे वीडियो में बनाएंगे।